Today we will discuss Chapter 5, Legislature. First of all, the question is, what is legislature? What is the meaning of legislature? So, the organ of government which makes law for country, which makes law for state, is called legislature. So, main function of legislature is making law. So, it is clear? Legislature means a body which makes law. You have already studied the importance of election and the method of election adopted in India. Legislatures are elected by the people and work on behalf of the people. So, legislature who makes law for us are elected by people. Means they are elected by us and they are our representative and work on behalf of us. In this chapter, we would study how elected legislature function and help in maintaining democratic government. You will also learn about the composition and functioning of the parliament and state legislature in India and their importance in democratic government. So we are going to study in this chapter that how we elect our representative and how they function and how they make law for us. After reading this chapter, we would know the importance of legislature, the functions and power of Parliament of India, the law making procedure, how the Parliament controls the executive, and how the Parliament regulate itself. So, these many things we are going to study in this chapter. So, first of all, we will see what is the need of Parliament. Why do we need a Parliament? Right? Here it is. Why do we need a Parliament? Legislature is not merely a law-making body. Here we have seen that in the definition of legislature, we have seen that legislature is a law-making body, but law-making is not the sole function of legislature. ठीक है, लेजिस्लेचर का काम सिर्फ लॉ मेकिंग ही नहीं होता, बट लॉ मेकिंग इज वन ऑफ इट्स फंक्शंस. सो लेजिस्लेचर इज नॉट मेरली अ लॉ मेकिंग बॉडी. लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर. बहुत सारे अपने फंक्शंस के साथ साथ लॉ मेकिंग का काम भी लेजिस्लेचर करता है. एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस. सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, जितनी भी पॉलिटिकल प्रोसेस होती हैं उनका भी सेंटर लेजिस्लेचर होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान जाओ कि लेजिस्लेचर कौन है. द बॉडी विच इज इलेक्टेड बाय पीपल. हम जिनको इलेक्ट करते हैं और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव या तो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं या फिर वो पार्लियामेंट में होते हैं. और आपको मालूम ही है पार्लियामेंट इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस. इट इज पैक्ड विथ एक्शंस. पार्लियामेंट इज पैक्ड विथ एक्शंस. एक्शंस लाइक वॉकआउट, प्रोटेस्ट, demonstration, unanimity,
concern and cooperation. All these serve very vital purposes. ये जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि पार्लियामेंट में होती हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, ये सारी एक्टिविटीज़, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है या फिर वॉकआउट है, प्रोटेस्ट है, ये सब एक वाइटल पर्पस के लिए होती हैं. इंडीड अ जेन्युइन डेमोक्रेसी इज इनकंसेबल विदाउट अ रिप्रेजेंटेटिव, efficient and effective legislature. The legislature also helps people in holding the representative accountable. और जो ये हमारा लेजिस्लेचर है, मीन्स हमारा जो पार्लियामेंट है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेबल बनाने में हेल्प करता है, उनकी जवाबदेही तय करता है, उनको पीपल्स के लिए जवाबदेह बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है. ठीक है, दिस इज इंडीड द वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ठीक है, और ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल होते हैं पीपल्स के लिए, तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक बेस है, ये जिसके आधार पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश होती है. Yet in most democracies, legislature are losing central place of the executive. In India too, the cabinet initiates policies, sets the agenda for governance, and carries them through. This has led some critics to remark that the parliament has declined. क्या बात हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इन मोस्ट डेमोक्रेसीज लेजिस्लेचर आर लूजिंग सेंट्रल प्लेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव. देखो, एज रिप्रेजेंटेटिव्स आर elected by us, so legislature are the central of the but in most democracies legislature are losing central place. सेंट्रल प्लेस पे किसको होना चाहिए? लेजिस्लेचर को होना चाहिए, जो कि पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाता है. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज में लेजिस्लेचर जो है वो सेंट्रल प्लेस जो है वो होता चला जा रहा है, और एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो सेंट्रल प्लेस में होते हैं. इन इंडिया टू, the cabinet initiates policies, sets the agenda for governance and carries them through. हमारे इंडिया में भी जो कैबिनेट है, कैबिनेट मीन्स जो एग्जीक्यूटिव है, वो पॉलिसीज़ को इनिशिएट करती है, एजेंडा सेटअप करती है. ठीक है, कंट्री को गवर्न करने के लिए जो एजेंडाज हैं उनको भी तय करने का काम कैबिनेट का है, और उनको इम्प्लीमेंट भी कराती है. This has led some critics to remark that parliament has declined. और इसलिए कुछ critics जो हैं वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट के सेंटर में होना चाहिए लेजिस्लेचर को, बट लेजिस्लेचर्स जो हैं वो पार्लियामेंट का सेंटर ना होकर कौन हो गए हैं? एग्जीक्यूटिव्स आर इन द सेंटर प्लेस ऑफ पार्लियामेंट. सो critics remark that parliament has declined, but even very strong cabinets must retain majority in the legislature. लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैबिनेट के लिए ज़रूरी है कि मेजॉरिटी उसके लेजिस्लेचर में उसको मेजॉरिटी मिली हुई हो. अगर मेजॉरिटी है लेजिस्लेचर के पास, तब तो वो स्ट्रॉन्ग कैबिनेट होगा और वो फंक्शन ठीक से कर पाएगा. अदरवाइज कैबिनेट भी जो है वो सेंट्रल प्लेस में होने के बाद भी अगर मेजॉरिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी नहीं है, तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी. अ स्ट्रॉन्ग लीडर हैज़ टू फेस द पार्लियामेंट एंड आंसर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है वो उसको पार्लियामेंट को फेस करना होता है,
जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे पूरी कंट्री से, और वो उनकी पॉलिसीज़ के लिए, गवर्नमेंट के काम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी पूछती है, उन सबको जो स्ट्रॉन्ग लीडर है पार्लियामेंट का, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको पार्लियामेंट को फेस करना होता है एंड उनका सेटिस्फैक्शन, उनको अपने आंसर से सेटिस्फाई भी करना होता है. Herein lies the democratic potential of the parliament. It is recognized as one of the most democratic and open forum of debate. So, parliament is called the most democratic and the largest open forum of debate. On account of its composition, it is the most representative of all organs of government. Right? It is above all vested with the power to choose and dismiss the government. ठीक है, तो उनके कॉम्पोजिशन के आधार पर लेजिस्लेचर जो है वो गवर्नमेंट के सभी ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, और उससे भी ऊपर जितने भी पावर्स हैं गवर्नमेंट के, उनको चूज करने का या उनको डिसमिस करने का, ये लेजिस्लेचर के पास होता है. ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. ओके, हियर इट इज. Why do we need 2 houses of parliament? You know very well, our parliament has 2 houses, lower house and upper house. Lower house is called Lok Sabha and upper house is called Rajya Sabha. Okay, so here we will see what is the need of 2 houses of parliament. Parliament के 2 house की ज़रूरत क्या है? The term parliament refers to the national legislature. Parliament means national legislature. The legislature of the state is described as state legislature. ठीक है, तो पार्लियामेंट हो गया नेशनल लेजिस्लेचर, और जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, जो स्टेट के लिए लॉ बनाती है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर. द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज 2 हाउसेस. When there are 2 houses of the legislature, it is called a bicameral legislature. तो जब भी पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं जहाँ कहीं भी, तो उसको bicameral legislature कहा जाता है. The 2 houses of the Indian Parliament are the Council of State और राज्यसभा. तो राज्यसभा का दूसरा नाम क्या हो गया? Council of States. ठीक है, एंड द हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा. और लोकसभा का दूसरा नाम क्या हो गया? हाउस ऑफ पीपल. सो आवर पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेस. लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ पीपल, एंड द राज्यसभा, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट द ऑप्शन ऑफ स्टैब्लिशिंग आइदर अ यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा वो नहीं है कि 2 हाउसेज ही होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर में भी. ये ऑप्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट चाहे तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर भी रख सकता है और बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी रख सकता है. और एट प्रेजेंट ओनली 6 states हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. सो इन इंडिया there are 6 states in which 2 houses are functioning. In 6 states there are bicameral legislature and rest are having unicameral legislature. And 6 states are Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. These are the 6 states which are having bicameral legislature, right?
you can see now. Now we will see countries with large size and much diversity usually prefer to have two houses of the national legislature to give representation to all sections in the society and to give representation to all geographical regions और पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो जो कंट्रीज़ हैं, जो बहुत लार्ज साइज़ की कंट्रीज़ हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यूजुअली वो कंट्रीज़ ही जो है वो टू हाउसेस रखती हैं अपने नेशनल लेजिस्लेचर में, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो सके और सभी सेक्शन के लोग जो हैं वो उसमें उसको रिप्रेजेंट कर सकें और उसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकें. ठीक है, अब बाईकैमरल लेजिस्लेचर हैज़ वन मोर एडवांटेज. वो क्या? अब बाईकैमरल लेजिस्लेचर मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर्ड. बाईकैमरल लेजिस्लेचर का एक फ़ायदा क्या हो जाता है कि इसमें कोई भी जो डिसीजन है उसको दो बार कंसिडर किया जा सकता है. ठीक है, उसको 2 times कंसिडर किया सकता है. उसको एक हाउस में जो भी डिसीजन है उसको दूसरे हाउस में उसको रिकंसिडर किया जा सकता है. एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू द अदर हाउस फॉर इट्स डिसीजन. एक हाउस में जो भी डिसीजन लिया गया वो दूसरे हाउस में उसको भेजा जाता है. दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस्ड ट्वाइस. ठीक है, दो हाउसेस में अगर दो हाउसेस हैं तो कभी भी एक हाउस के थ्रू जो है कोई बिल या प्रपोजल या पॉलिसी जो है वो पास नहीं होती. एक हाउस में डिस्कस होने के बाद वो दूसरे हाउस में भी जाती है और इस तरह से कोई भी बिल, कोई भी पॉलिसी, कोई भी डिसीजन जो है वो दो बार डिस्कस्ड होता है. दिस इंश्योर्स अ डबल चेक ऑन एवरी मैटर. और ये जो रीडिस्कशन से जो दो बार डिस्कशन होता है उससे क्या होता है कि एक तरह से जो वो पॉलिसी है वो डबल चेक हो जाती है, वो मैटर जो है वो डबल चेक्ड हो जाता है. इवन इफ वन हाउस टेक अ डिसीजन इन हेस्ट, that decision will come for discussion in the other house and reconsideration will be possible. अगर मान लो किसी एक हाउस ने जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लिया तो दूसरे हाउस के पास और उससे कोई चीज़ ऐसी मान लो कि अगर छूट गई तो वो रिकंसिडर होता है दूसरे हाउस में. तो चांसेस ये होते हैं कि दूसरा हाउस जो है वो उसको अगर कहीं कोई लैकुना है तो वो उसको डिटेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो रिकंसिडरेशन का ये फ़ायदा होता है. तो आज हम लोगों ने देखा टू हाउसेस कौन कौन से हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट एंड व्हाई डू वी नीड टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. नाउ वी विल डिस्कस राज्यसभा upper house and Lok Sabha lower house separately. We will discuss these two houses in our next video.